Okay, now we are going to discuss semiconductor devices which carry 7 marks. What are the important topics from this chapter? First is full wave rectifier, important topic. Second is study of forward and reverse bias of PN junction diode with graph for forward and reverse bias. Formation of PN junction, energy band diagram in p-type, n-type and intrinsic semiconductor at 0 Kelvin. Difference between conductor, semiconductor and insulator on the basis of energy diagram. Difference between intrinsic and extrinsic semiconductor. You have to give importance on these topics. The most important topic is full wave rectifier, half wave rectifier, study of forward and reverse bias, then formation of PN junction. Okay, now the semiconductors, they are semi, that means they have moderate resistivity. That means resistivity less than insulator but greater than metallic conductors. Okay. So there are different types of semiconductor: elemental semiconductor, then compound semiconductor. Elemental semiconductor are germanium and silicon. They are pure semiconductors. Then compound semiconductor, organic, inorganic, like this polymer, organic polymer. The pure semiconductor classified as intrinsic and extrinsic semiconductor. Intrinsic मतलब pure. Example क्या है? Silicon and germanium. When suitable impurities are added, the process is known as doping. The new semiconductor obtained known as extrinsic semiconductor. Obviously, extrinsic semiconductors have higher conductivity. Okay. Again, extrinsic semiconductors are of two types: N-type and P-type semiconductor. Remember, N-type, more electrons. So it is obtained by doping pentavalent impurity. Okay, trivalent impurity add करने से P-type semiconductor आएगा. Okay. Now question is, this is the graph showing the variation of resistivity with temperature in case of conductor. When temperature increases, look at here, resistivity gradually increases. In case of metallic conductor, why? Because the collision increases. The collision increases. When temperature increases, electrons collide more frequently, so opposition increases, resistivity increases. But it is exactly opposite in case of semiconductor. When temperature increases, resistivity decreases, घट जाता है. So it cannot be explained on the basis of that free electron theory. The new theory comes, that is known as band theory. Okay. So remember, in case of band theory, what happens? Band, that means the energy level divided into large number of small energy parts. The collection of that energy part is known as energy band. Lower band is valence band, upper band is conduction band. Okay, valence band, another is conduction band. Okay. Now, the gap between valence band and the conduction band is known as energy gap or forbidden gap. On the basis of this, we can classify insulator and semiconductor. In case of insulator, the gap is greater than 3 electron volt. In case of semiconductor, it is less than 3 electron volt. Carbon insulator है, उसका 3 से ज़्यादा होगा, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, उसका 3 से कम होगा, एक का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अनदर 0.72, 0.72, अनदर इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जर्मेनियम सबसे नीचे है, जर्मेनियम का 0.72, सिलिकॉन का 1.1. ओके, ठीक है. In semiconductor, there are two types of charge carriers: electrons and holes. Electron negatively charged, hole positive charged. Electrons conduct current in conduction band, holes conduct current in valence band. ठीक है? उल्टा बोल दिया क्या सर? नहीं, एकदम सही. होल्स कंडक्ट करंट इन वैलेंस बैंड. इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर कंडक्शन बैंड को जाता है, इसलिए कंडक्शन बैंड में कंडक्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन. ओके. आपने नोट में लिखा है था कि वैलेंस बैंड में करंट कंडक्ट करता है. मैंने पढ़ा. सही लिखा है, सही लिखा है, देख लेना दोबारा. ओके. नाउ, तो नाउ टेल मी, with increasing temperature, why does resistivity of semiconductor decrease? If temperature increases, more and more electrons jump to the conduction band. So free electron increase, that's why conductivity increases, resistivity decreases. Now on the basis of
conducts the energy band we can classify conductor, semiconductor and insulator. In conductor there are two possibilities. Either the conduction band and valence band overlap or they are partially filled. Okay, and in case of semiconductor the band gap energy band is less than 3 electron volt. In case of insulator it is greater than 3 electron volt. Okay, now at 0 केल्विन, रिमेंबर बच्चे 0 केल्विन में किसी को भी एनर्जी नहीं मिलता. एक फॉर्मूला होता है 3/2 kT द काइनेटिक एनर्जी, याद है? तो K 0 हो गया, T 0 हो गया टेम्परेचर, तो एनर्जी 0. तो एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो कंडक्शन बैंड को जाएगा. तो रिमेंबर एट 0 केल्विन देयर आर नो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड. There are no electron in conduction band. Only the electrons present in valence band. ये डार्क क्या होता है? नो इलेक्ट्रॉन. और सर्कल होता है होल. रिमेंबर, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड. नाउ लुक एट हियर, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस 0 केल्विन, आप जरा देखिए तो ऊपर में कितना डॉट बनाया गया है? 4. नीचे देखो सर्कल 4 बनाया गया है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी, नंबर of holes. So number density of electrons and holes are equal. It is an intrinsic semiconductor. कौन सा semiconductor है? Pure, like silicon and germanium. टेम्परेचर जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा जाएगा. कहाँ जाएगा? कंडक्शन बैंड में जाएगा. तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा. बात समझ में आ गया? नाउ तो यहाँ देखिए लिखा गया है कार्बन, हाँ देखिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, 0.72 फॉर जर्मानियम, कार्बन 5.4 इलेक्ट्रॉन इसमें लिखा गया है. तो आपको एक क्वेश्चन है एग्जांपल में, देखो ऊपर में कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मानियम है, दे ऑल लाई इन सेम ग्रुप. कार्बन इज इंसुलेटर व्हेयरएज सिलिकॉन एंड जर्मानियम आर सेमीकंडक्टर. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो, कार्बन 246, सिलिकॉन 284 और उसका 28184. तो हियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकेंड ऑर्बिट. इन केस ऑफ सिलिकॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट या थर्ड सेल. सो हियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस और कंपैरेटिवली जर्मानियम में भी और फोर्स कम होगा. तो दैट्स व्हाई दे हैव लेस एनर्जी गैप, दे कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन. तो मुझे बताओ कार्बन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बैंड गैप ज्यादा होगा. वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को जा नहीं पाएगा. दैट्स व्हाई इट इज व्हाट? इंसुलेटर. नाउ तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस डोपेंट, तो क्या मिलेगा? एक्सट्रिंसिक. प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग. There are two types of doping. You can add trivalent or you can add pentavalent. बच्चे सिलिकॉन, जर्मानियम, प्योर सेमीकंडक्टर, इसका वैलेंसी कितना? 4. तो आइदर 3 ऐड करोगे नहीं तो 5 ऐड करोगे. ठीक है, 5 ऐड करोगे तो N टाइप मिलेगा. कौन कौन है? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी. फॉस्फोरस तो सबको याद होगा, एल्यूमिनियम आपको याद होगा. अच्छा बताइए तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. क्या क्या मैंने बोला? दोबारा बोलो. एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन. तो देखो ये है वैलेंसी 4, एल्यूमिनियम 3, फास्फोरस 5. तो फास्फोरस का मैं ऐसे याद रखा हूँ पास, PASS. देखिए नहीं हो रहा है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी. ठीक है, समझ में आया? और वो क्या है? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, आल्गा, इंडियम. देखो आएगा एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम. ठीक है, बोरॉन है, बी. ओके, चलिए तो अब देखिए क्या होता है. याद रखो सिलिकॉन, जर्मानियम वैलेंसी 4, तो 4 होने से 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. बीच में जर्मानियम था, 4 जर्मानियम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड था. अब उसके जगह पर आपने पेंटावैलेंट फास्फोरस ले आया. क्या ले आया आपने? फास्फोरस. तो फास्फोरस का वैलेंसी 5, तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया. तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया. तो व्हाट आर द मेजर चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर? इलेक्ट्रॉन. व्हाई दे आर नेम्ड एज एन टाइप? बिकॉज़ मेजर चार्ज कैरियर्स आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. Does it mean that the n-type semiconductor is negatively charged? No, it is neutral. उसके अंदर जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, होल कम है. समझ में आया?
इसको सिंबल ऐसे देते हैं, होल पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन डार्क फ्री है। ओके, अच्छा, व्हाट इज एनर्जी बैंड डायग्राम जरा देखिए ठीक से। ये कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड। ये कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड। मैंने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिखाया था पहले और 3 होल दिखाया था। अब ये जो आपने जो आपने फास्फोरस को दिया, फास्फोरस नोन एज डोनर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इट इज डोनर लेवल। इट इज वेरी मच क्लोजर टू कंडक्शन बैंड। डोनर लेवल इलेक्ट्रॉन देगा तो किसको देगा? कंडक्शन बैंड को देगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को दे दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। एक बार क्वेश्चन आया था, आप बता पाएंगे कंडक्शन बैंड और ये डोनर लेवल के बीच में गैप कितना होता है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये गैप होता है। एक बार क्वेश्चन आया था। 0.01। हाँ, आपने कहा था। ओके, ठीक है। तो व्हाट आर द मेजर चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर? इलेक्ट्रॉन्स। तो कैन एनीवन टेल मी Ne/NH in n type semiconductor? What can you say about Ne/NH? Yes, greater than 1. Very good. Because Ne greater than NH, तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा। वेरी गुड। NH/Ne less than 1. It is n type semiconductor. Is it clear? Now come to p type semiconductor. So p type semiconductors are obtained by doping trivalent impurity. For example, alga, aluminium, gallium, indium. समझ में आया? ओके, तो इसका वैलेंस कितना? 3। तो बॉन्ड कितना था पहले? 4 था। तो 3 तो बॉन्ड बना दिया, एक शॉर्टेज पड़ गया तो बगल वाले से मांग के ले गया, जर्मानियम से मांग के ले गया तो जर्मानियम का एक शॉर्टेज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो गया। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल। बच्चे होल कुछ नहीं है, जैसे लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट इज नोन एज शैडो, सिमिलरली एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट इज नोन एज होल। होल कौन सा बैंड में बनेगा? वैलेंस बैंड में, कभी कंडक्शन बैंड में नहीं बनेगा। समझ में आया? यस सर। तो इसलिए जर्मानियम का एक होल बन गया। तो देखिए डायग्राम देखिए, ये हुआ कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड। इसमें पहले से 3 होल दिखाया गया था तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा किसमें? कंडक्शन बैंड में। और इसमें देखो 3 होल है, 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन देखो, दिस इज नॉट एक्सेप्टर लेवल बिकॉज इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन मीन्स दैट लेवल इज क्लोजर टू वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जाएगा। Okay, it is also 0.01 electron volt to 0.05 electron volt. Okay, so here number of holes increase. What are the major charge carriers here? Holes. P type semiconductor is positively or negatively charged? Neutral. Neutral. Because it contains equal number of protons and Yes, equal sir. number of electrons. ठीक है? Okay. Now देखिए ना डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक बताइए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्योर, एक्सट्रिंसिक आर ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग। इंट्रिंसिक हैव लेस कंडक्टेंस, एक्सट्रिंसिक कंडक्टर्स हैव मोर कंडक्टेंस। ओके, मोर कंडक्टिविटी। ओके, Ne इक्वल टू NH, Ne नॉट इक्वल टू NH। हो गया। और इसमें और एक बात है, द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इज Ni इज इक्वल टू Ne इक्वल टू NH। हियर Ni इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Ne इनटू NH, एक फॉर्मूला होता है। ओके, नाउ ये देखिए मोबिलिटी कहाँ से है? मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताए किसका मोबिलिटी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज्यादा है, होल का मोबिलिटी कम। मोबिलिटी मतलब कौन कितना फ्री है मूव करने के लिए, कौन फ्री ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। नाउ कम टू पीएन जंक्शन। बच्चे पीएन जंक्शन बनेगा कैसे? व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस? देखो पीएन जंक्शन मतलब लेट अस टेक ए, देखो ये हुआ प्योर सेमीकंडक्टर लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। डोप हाफ विद ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, अदर हाफ विद पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। तो जिधर आपने ट्राई किया वो बन जाएगा पी टाइप, जिधर आपने पेंटा किया वो बन जाएगा एन टाइप। बीच में एक जॉइंट, जॉइंट मतलब दोनों तरफ से आएगा इलेक्ट्रॉन, जहां वो जॉइंट होगा उसको बोलेंगे पीएन जंक्शन। तो हाउ पीएन जंक्शन इज प्रिपेयर्ड? बाय डोपिंग हाफ ऑफ ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद ट्राइवैलेंट एंड अदर हाफ विद पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या होता है, ये डायग्राम थोड़ा ठीक से समझिए। What type semiconductor is this? P type. This is N type. In P type semiconductor the majorly charged carriers are holes. देख लीजिए ये होल है और आयन नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव बन गया।
पी टाइप कैसे, एन टाइप में, ये पी टाइप है ना, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी था, एक ले लिया, तब तो होल फ्री हुआ ना। इलेक्ट्रॉन ले जाने के बाद वो एटम का चार्ज नेगेटिव हो जाता है, तो ये एटम नेगेटिव है, वो आयन बन गया नेगेटिव आयन, और ये हो गया एक्सेप्टर आयन जो आपने एल्यूमिनियम लिया था, और ये हो गया आपका होल। लेकिन इसमें आयन पॉजिटिव है और चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन फ्री है। बच्चे देखो, इसमें होल ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो दे डिफ्यूज। तो बताइए डिफ्यूजन का व्हाट इज द रीजन ऑफ डिफ्यूजन? डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन। तो दे डिफ्यूज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो होल्स डिफ्यूज फ्रॉम P to N, P में होल ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम N to P, क्योंकि N टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्लियर हो गया? ओके, तो ड्यू टू डिफ्यूजन आप देखिए ये लेयर के पास इलेक्ट्रॉन और होल चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप देखिए कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई होल नहीं कि यहाँ पर कोई होल नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है बीच में। नहीं, ये माइनॉरिटी है, इसका होल नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं, ये माइनॉरिटी है। ओके, तो ड्यू टू accumulation of positive and negative charges, a potential difference is developed known as potential barrier. What is the potential barrier? The potential difference developed across p-n junction is known as potential barrier. Okay, तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड P to N होगा या N to P? P to N. ना, नहीं, क्योंकि N टाइप में पॉजिटिव चार्ज है, P टाइप में नेगेटिव चार्ज है। दे आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दे आर फ्रॉम N to P। ये हो गया बैरियर पोटेंशियल। अब बैरियर पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था उसको फोर्स लगेगा। F is equal to yes QE. So now the minority charge carriers move. This is known as drifting. तो डिफ्यूजन किसके कारण हो? व्हाट इज द कॉज ऑफ डिफ्यूजन? कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज द कॉज ऑफ ड्रिफ्टिंग? इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेस ड्रिफ्टिंग। और ड्रिफ्टिंग कहां से कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में जाएगा। होल पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। अब देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है? N to P। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम N to P, सो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम P to N। आप ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या लिखा हुआ है? ड्रिफ्टिंग। तो ड्रिफ्टिंग क्या होगा? यहां से ये देखिए दिखा गया है ना, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट फ्रॉम P to N, होल्स ड्रिफ्ट फ्रॉम N to P। इज इट क्लियर? तो डिफ्यूजन अब धीरे धीरे विड्थ बढ़ते जाएगा। आप देखिए विड्थ बढ़ गया, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन? दे आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब जितना ड्रिफ्टिंग होगा उतना डिफ्यूजन होगा। ड्रिफ्ट करंट इक्वल टू डिफ्यूजन करंट। मतलब डिफ्यूजन ड्रिफ्टिंग थोड़ा थोड़ा होता होगा, बट देयर इज नो एनी इम्पैक्ट। अब याद करो केमिस्ट्री में पढ़े थे, फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन कंटिन्यूज बट देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा होगा। ठीक है, तो इन दिस केस विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर रिमेन फिक्स्ड। On which factor the width of the depletion layer depend upon? Concentration of doping. जितना ज्यादा डोपिंग करेंगे उतना width कम होगा, जितना डोपिंग कम करेंगे width उतना ओके। now तो what are the two processes responsible for formation of p-n junction? Diffusion and drifting. Okay, the electron diffuse from P to N. डिफ्यूजन मतलब मेजॉरिटी, तो N to P इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये याद रखना। डिफ्यूजन हमेशा मेजॉरिटी के लिए, ड्रिफ्टिंग माइनॉरिटी। नाउ p-n junction diode, the only difference is there is a metal cap on these two sides. Okay, there are two metal caps for to increase the conductivity. Now this is a p-n junction diode. तो symbol of diode is this. बच्चे ये क्या symbol है? ये एक लाइन है N टाइप और ये वाला P टाइप। So there are two types of biasing, forward biasing and reverse biasing. Forward biasing P type connected to positive or higher voltage, and in reverse biasing P type connected to negative or lower voltage. अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ बच्चे, देखो पॉजिटिव नेगेटिव मत देखना, हाई लो देखना, नहीं तो फंस जाओगे। अच्छा ये क्या सिंबल है? ये क्या है? R3, मतलब कितना वोल्ट? 0 वोल्ट। ये कितना वोल्ट? 2 वोल्ट। ये टाइप N, ये P। तो देखिए P में लो आ गया तो रिवर्स बायस। -5 -6, इसमें हाई कौन है? -5। P के साथ -5 लग गया तो हाई हो गया, तो इसलिए कौन सा बायस? फॉरवर्ड बायस।
सर इनका साइन तो सेम है ना, लेकिन ये तो साइन -5 और -6 से बड़ा कौन है? -5 बड़ा है ना। ओके, अब देखिए बच्चे, ये कौन सा बायस है बोलिए? इसमें तो प्लस माइनस नहीं लिखा, यहाँ सेल दे दिया। ये वाला बड़ा वाला तो हाई forward वोल्टेज bias। होता नहीं, है, नहीं। तो हाई के साथ हाँ, एन आ reverse गया, bias। रिवर्स बायस। ओके सर, सर। ना, ये देखो अर्थिंग आ गया। ये कौन सा वोल्ट? 0 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट, हाई 4 है, ये गलत लिखा। ये -4 है शायद। ओ -4, इसलिए फॉरवर्ड बायस। इज इट क्लियर? नाउ कम टू स्टडी ऑफ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा बताइए, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, लेकिन बाद में करेंगे, इसको देखेंगे। ओके, नाउ स्टडी ऑफ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए व्हाट? पीएन जंक्शन डायोड। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन में आया था, ड्रॉ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ऐसा नहीं लिखो ये देखने में ऐसा है, खाता है, ऐसा नहीं। ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ। देखिए ये V और ये I, ये मिली एम्पियर और ये माइक्रो एम्पियर, ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस। याद आया? Yes. ये हुआ आईवी कैरेक्टरिस्टिक। हमें ये ड्रॉ करना है, स्टडी करना है, तो स्टडी करने के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो करंट मतलब एमीटर लगाना पड़ेगा, वोल्टेज चाहिए तो वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, और एक वेरिएबल वोल्टेज चाहिए। क्यों? आप वोल्टेज वेरी करोगे तब ना अलग अलग रीडिंग लोगे। तो ये क्या हो गया? पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसके साथ एक देखो वेरिएबल वोल्टेज लगा दिया। देखिए तो ये पी टाइप पॉजिटिव में कनेक्ट नहीं हुआ, एन टाइप नेगेटिव में फॉरवर्ड हो गया। तो यहाँ पर स्विच दे दिया, यहाँ पर एक रेजिस्टर दोगे तो ओके। अच्छा एक चीज में भूल गया, स्विच लगा देंगे, एमीटर लगा देंगे, और इसके साथ क्या लगा देंगे? कौन सा एमीटर है? मिली एमीटर या वोल्ट मीटर? माइक, ये मिली एमीटर लगा देंगे। हो गया। ये कौन सा बायस के लिए है? फॉरवर्ड के लिए। ठीक है, अब देखो फॉरवर्ड में ऐसा होता है, पी टाइप, एन टाइप, ये हुआ आपका जंक्शन, ये से कनेक्ट है कि नहीं? बच्चे आपको याद होगा पी टाइप में मेजरली चार्ज कैरियर कौन है? होल। इसमें होल नहीं है। व्हाट इज डिप्लेशन लेयर? The region around the PN junction where no charge carriers are found. Okay, only immobile charges are found. ठीक है? सर डिप्लेशन जो है कहाँ से कहाँ तक होता है? कौन यहाँ से यहाँ तक साइड में होता है, जहाँ तक चार्ज आयन रहेगा, वो ना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना होल, जहाँ तक होगा ये डिपेंड करता है। अब देखिए ये पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। इधर व्हाट आर द मेजर चार्ज कैरियर्स? होल। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो होल आगे जाएगा। सिमिलरली हियर नेगेटिव, हियर मेजर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, वो इधर आएगा। तो देखो लेफ्ट से होल आएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिए तो विड्थ ऑफ द डिप्लेशन ग्रेजुअली डिक्रीज। अब इमेजिन करो, ये देखिए बहुत बढ़िया, देखो ये हुआ डिप्लेशन लेयर। यहाँ देखो होल नहीं था, यहाँ पर होल एब्सेंट, हियर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन एब्सेंट। ये पॉजिटिव चार्ज होल को रिपेल किया, होल अभी इधर आ गया कि नहीं? सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो विड्थ ऑफ द डिप्लेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस। व्हेन द सप्लाई वोल्टेज इज ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल, देन करंट स्टार्ट्स टू फ्लो। ठीक है, सो द ग्राफ डजंट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। बच्चे ये ग्राफ ओरिजिन से क्यों स्टार्ट नहीं हुआ? आप देखिए ग्राफ आगे है, ये ग्राफ है। ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ? 0.4 वोल्ट, बिकॉज 0.4 वोल्ट इज बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन डायोड। यहाँ 0.6 वोल्ट क्या है? बैरियर पोटेंशियल। दैट्स व्हाई ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम 0.6। इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल, देन ओनली करंट फ्लोज। ओके, इज इट क्लियर? व्हाट हैपेंस इन रिवर्स बायस? रिवर्स बायस में उल्टा हो जाएगा। ये देखिए रिवर्स बायस। ठीक है, आप जरा देखिए, पी टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, एन टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। इसमें क्या होगा देखो बच्चे, इसमें होल था, पी टाइप है ना, होल है यहाँ। ये होल क्या करेगा? राइट को जाएगा कि लेफ्ट को जाएगा? ये नेगेटिव है, होल इधर आ जाएगा।
और यहाँ जो Attract हो जाएंगे। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इधर आ जाएगा. The width of the depletion layer increases. So there is no current due to majority charge carriers. There is no current due to majority charge Got some carriers. current in mind. But there is very few current due to minority charge carriers. carriers. So there is very few current in microampere. आप देखिए ये जो करंट हुआ ये माइक्रोएम्पियर में. It is due to which carriers? Minority charge carriers. In which bias current flows due to majority charge carriers? Forward bias. In which bias current flows due to minority charge carriers? Reverse bias. So you have to explain this if it is asked in the examination. In which bias barrier potential increases? Reverse. Barrier potential increase, width of the depletion layer increase. ये सब reverse bias में. In forward bias width decreases, barrier potential decreases. ठीक है? तो इसके लिए एक ग्राफ है, ये देखिए. This is on bias. देखो ये हाइट को देखो, ये और ये हाइट को देखो, ये क्या है? बैरियर पोटेंशियल. इन फॉरवर्ड बायस दिस वोल्टेज डिक्रीज. अब हाइट कम हो गया कि नहीं? इन रिवर्स बायस हाइट इंक्रीजेस. इज इट क्लियर? मिडिल वाला क्या है? ऑन बायस. ऊपर वाला किसके लिए? रिवर्स बायस. नीचे किसके लिए? फॉरवर्ड बायस. ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्यों लिया? दिस इज डिप्लेशन लेयर. क्योंकि डिप्लेशन लेयर का दो अपोजिट साइड में ना पोटेंशियल डिफरेंस आता है. ओके, व्हिच कैरीज करंट इन रिवर्स बायस? माइनर चार्ज carriers. Is it clear? Yes, sir. Now come to ideal diode. Ideal diode means it is assumed that there are only majority charge carriers. There are no. तो इसका मतलब व्हाट इज करंट इन रिवर्स बायस? जीरो. क्योंकि रिवर्स बायस में करंट किसके कारण होता है? माइनॉरिटी. एंड वी अज्यूम दैट देयर आर नो, so there is no current in reverse bias. So ideal junction diode conducts current in forward bias only. There is no current in Reverse bias. because ideal diode have no minor charge. Is it clear? So what is the resistance of junction diode in reverse bias? Zero. Reverse infinity. Current allow ही नहीं करेगा. And in forward bias it allows current, so zero resistance. Remember. ठीक है? तो about this there is a देखो question. This is diode. This is 2 ohm. This is 10 volt. Which bias is this? तो what is the resistance of this diode? Zero. बाकी क्या resistance बच गया? 2. So current is equal to 10 by 2. That is 5 ohm. But same question, bias change. Look at here. ये देखिए, ये पॉजिटिव, ये पी टाइप है. Which bias is this? ये नेगेटिव टर्मिनल. रिवर्स. तो what is the resistance of this? Infinity. That means doesn't allow current in this case. इसमें करंट अलाउ ही नहीं करेगा. तो नहीं करेगा तो करंट सिर्फ इसमें जाएगा. तो which resistance is in function? 5 ohm. तो करंट इज इक्वल टू 10 by 5 2 एम्पियर. इसमें करंट नहीं रहेगा. ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? नाउ what is the resistance of ideal diode in forward bias? Zero. What is the resistance of ideal diode in reverse bias? Infinity. Ideal diode conducts current in which bias? Forward bias. It doesn't conduct current in reverse bias. अच्छा, बता पाएंगे? एक ट्रिक है. ये एक एरो जैसा नहीं दिख रहा है? What does this arrow represent? It allow current in this direction only. Current ये डायरेक्शन में अलाउ करेगा. उल्टा डायरेक्शन में करंट अलाउ, तो ये डायरेक्शन में अलाउ तब करेगा जब ये साइड पॉजिटिव होगा. इज इट क्लियर? मींस इन फॉरवर्ड बायस. इज इट क्लियर और नॉट? नाउ कम टू रेक्टिफायर. यू नो एसी एंड डीसी. रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी टू डीसी. द प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन. प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन. डिवाइस इज नोन एज रेक्टिफायर. ओके, so diode can be used as rectifier. What is the principle? Because ideal junction diode conducts current in forward bias. देखो, direct current means only one direction. Alternating current means both the direction. आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा. बात समझ में आया? Okay, so junction diode converts AC to DC. Half wave rectifier. So in half wave rectifier one diode is used. In full wave rectifier two diodes are used. Here one diode used a half wave rectifier.
तो दिस इज ए ट्रांसफार्मर, ये जो दिखाया गया है दिस इज ट्रांसफार्मर, दिस इज इनपुट एसी, बट हियर वी नीड आउटपुट डीसी। यहाँ आउटपुट हमें डीसी चाहिए। बच्चे ये आरएल क्या है? लोड रेजिस्टेंस, जिसको डीसी चाहिए। इमेजिन आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हो, ये एक मोबाइल चार्जर है, ये आपका प्लग है, ठीक है, प्लग से कनेक्ट कर दिया। तो ये मोबाइल को डीसी चाहिए और ये मोबाइल जो चार्जर है वो एसी को डीसी कन्वर्ट करके देता है, उसके अंदर एक रेक्टिफायर है। ओके, सो हाउ मेनी डायोड्स आर यूज्ड? One diode. AC means sometime A is positive, B negative, and after half cycle A negative, B positive. But देखो voltage at A positive, negative, this is time. Okay, अब देखिए suppose A positive, B क्या होगा? A positive होगा तो junction diode is, देखो ये P side है, P side positive में connect हो गया तो it is forward bias, so it conducts current, so this is the output. After half cycle, now A became negative, B became positive. A negative है तो ये कौन सा बायस हो जाएगा? तो रिवर्स में तो कंडक्ट नहीं करता, इसलिए करंट नहीं है। Again after half cycle A became positive, again we get current. So we get current only in this direction. बच्चे देखो फॉरवर्ड बायस होगा तो A से करंट जाएगा X Y B, करंट का डायरेक्शन बोलो X Y B, ऐसे जाएगा। तो ऑलवेज करंट फ्लोज फ्रॉम एक्स टू वाई, एक डायरेक्शन से जाया गया, इसलिए कौन सा करंट है? डायरेक्ट करंट। तो इस डायरेक्ट करंट इज ऑब्टेन्ड। बात समझ में आ गया? नाउ फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाउ मेनी डायोड्स आर देयर यूज्ड इन फुल वेव रेक्टिफायर? 2 डायोड। दिस इज डायोड 1, दिस इज डायोड 2, दिस इज सेंटर टैप। इतना आपको याद रखना है। दिस इज इनपुट एसी, दिस इज सेकेंडरी कॉइल, ओके, डायोड D1, डायोड D2, यहाँ से एक सेंटर टैप हुआ एक्स वाई। तो आरएल का है लोड रेजिस्टेंस, ये है लोड रेजिस्टेंस, दिस इज लोड रेजिस्टेंस। ओके, तो दिस इज लोड रेजिस्टेंस। नाउ हाउ डज इट वर्क? बच्चे दीज आर द टू इनपुट्स, वेव फॉर्मेट ए, वेव फॉर्मेट B and the output voltage. बच्चे when A positive, B negative, आप देखिए A पॉजिटिव है तो B नेगेटिव है, A नेगेटिव है तो B पॉजिटिव। इज इट क्लियर? तो when A पॉजिटिव B नेगेटिव, ध्यान दीजिए A पॉजिटिव डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस, D2 इज रिवर्स बायस, D1 कंडक्ट्स करंट, पाथ क्या होगा? A D1 B X Y A, current flows from X to Y. हाँ, C. Then after half cycle B positive, A negative, D1 doesn't conduct current, rather D2 conduct. तो D का पाथ क्या होगा बताओ करंट का? B D2 P X Y C B, again flows from X to Y. तो इन बोथ द हाफ साइकिल करंट फ्लो, देखिए ये D2 D1, ये पॉजिटिव था D1, अब ये पॉजिटिव है D2, ये पॉजिटिव है D1, ये पॉजिटिव। सो इन बोथ द हाफ साइकिल वी गेट करंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। वेरी गुड। अब मुझे बताइए, सपोज इनपुट एसी, द इनपुट एसी हैज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर? डबल हो जाएगा, 50 into 2 100 हो जाएगा। Is it clear? In half wave rectifier, no, it will remain same, 50 to 50 रहेगा, लेकिन full wave में frequency double हो जाएगा। Is it clear? Yes, sir. Now come to some questions. Yes, देखिए, what is hole? Absence of electrons. Where do they exist? Valence band. Okay. What is conduction band? where electrons are free to move. The upper energy band. The lowest on-field energy band lying just above the valence band. The energy band just above the valence band is conduction band. What is forbidden gap? The difference between valence band and conduction. Very good. What is the value of forbidden gap for germanium? 0.72 electron volt. Okay. Why germanium is preferred over silicon for maximum semiconductors? It has less
forbidden gap. What is the extrinsic semiconductor? Obtained by Sir, Obtained by plus, doping. Intrinsic plus dopant. doping, yeah, dopant is equal to extrinsic. What type of semiconductor obtained when germanium doped with indium? pentavalent. ज- जर्मन E टाइप या N टाइप बोलेगा, पेंटावैलेंट क्या बोलता एन है? टाइप गैलियम में सर जर्मेनियम हाँ बोलिए PASSB ये हो गया पेंटावैलेंट. बाकी रह गया गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, आल्गा. तो आपने क्या पूछा क्वेश्चन? इंडियम पूछा. तो सर ये होगा ट्राइवैलेंट. ये ट्राइवैलेंट है तो P क्या type. मिलेगा? P P type. type. Remember. What type of semiconductor is formed when germanium is doped with arsenic? एन टाइप. N type. Is it clear? Okay. सर ये वाला और का बताइए क्या? याद रखना इसका नाम है पास, PASSSB. ओके. आनंद अल्गाइन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी. फास्फोरस तो पेंटावैलेंट, एल्यूमिनियम ट्राइवैलेंट, ये इजीली याद रहता है. ओके. तो आगे distinguish between intrinsic and extrinsic very easy. What type of doping creates a hole? सर What type P of type. doping? P टाइप. हाँ P टाइप. Trivalent या pentavalent? ट्राइवैलेंट. Trivalent. Okay. Doping of trivalent lipids creates. अच्छा. In case of PV diagram, there is a current, sudden increase in current in reverse bias, isn't it? In reverse bias, you can see current increases suddenly. This is the increase in current. This voltage is known as breakdown. Breakdown. Why does current increase suddenly? Because breaking of covalent. Very good. Because of covalent bond breaks. Okay.